Hello everyone, good morning. How are you all? Good morning, sir. I am fine, sir. What Hello, about sir. you? Good morning, sir. What about you? I'm Fernando. I'm also fine. Thank you. In today's math session, we have to solve the worksheet because all the exercises we have completed of the second chapter. And the last exercise is the worksheet. And worksheet में क्या होता है? Whatever you have learned, whatever you have studied till date. The second chapter, whatever you have studied in the exercise 2.1 and 2.2, the same questions would be there in the worksheet. So I hope कि 2.1, 2.2 आप सभी को समझ में आ गया होगा. किसी को किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो वो पूछ सकता है. Anybody are having any issue with any questions of exercise 2.1 and 2.2? They can show their hand. They can raise their hand. Okay, no issue. So that means कि 2.1, 2.1 and 2.2 सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. सभी को समझ में आ गया है? Yes, sir. 2.1, 2.2 की तरह ही सेम क्वेश्चंस आपके वर्कशीट में हैं. तो वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस you all need to complete for. इस क्वेश्चन को पहले मैं ना करा करके पहले आप लोग कोशिश करें. इनकेस कुछ समझ में नहीं आता, कुछ आप कर नहीं पाते हैं, then I will explain. Okay? By the way, बात हो ही रही है तो कुछ चीजें मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ. कुछ चीजें let's say कि what do you mean the sentences and how you have to complete. Not only the worksheet but also you need to complete the mental math. और दोनों में क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, दोनों एक्सरसाइजेस में, दोनों एक्टिविटीज में what is expected from you. मैं वो चीज एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर आप उसको करने की कोशिश करिएगा. Alright? Yes, sir. Yes, sir. 34 everyone please. Open Yes, the page sir. 34 everyone. On the page number 34 there is a activity. You need to help the rabbit to reach the carrot by solving the addition and the subtraction problems on the way. Write the answers in the spaces provided. That means कि आपको you all are getting the on page number 34 there is a rabbit and carrot na? Yes, sir. What you need to do? Yes, sir. You need to solve the questions because unless you are solving the questions you cannot reach the rabbit cannot reach to the carrot. तो आप सबसे पहले जो भी addition या subtraction जो भी problems है you all need to solve. So how many can solve these problems? Show me your hand. How many students can solve these problems, these addition or subtraction statement questions? I hope that many from you can solve, even all of you can solve because सीधा आपका वर्टिकल फॉर्मेट में ऐड जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में करते आए थे सेम वही सारी चीजें हैं, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ध्यान देना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में कोई गलती ना हो. ओके, डाउन योर हैंड्स एवरीबॉडी प्लीज. इस तरह ध्यान देना कि ऐसा मत सोचिएगा कि ये बहुत इजी है, आप बहुत ज्यादा इजी समझ करके इसको कहीं गलत ना कर दें. बहुत हल्के में मत लेना किसी भी क्वेश्चंस को. आप सॉल्व करने के जल्दी के चक्कर में इसको गलत मत कर देना, इतना केवल ध्यान देना है. ओके? Yes, sir. Now come to the second question. Come to the question number second. Question number second, I think बेटा आस्था आपके पापा बहुत सामान खरीद के लाए हैं, है कि नहीं? चलिए ठीक है. Question number second, आस्था के घर की बात है. Actually, Asa's father name is Mr. Bijlal, and in the second question there is a person whose name is Mr. Bijlal. तो होता क्या आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है? मैं बिजलाल के सामने मिस्टर बिजलाल लगा दूंगा because actually I'm relating it to the Asa's father. Mr. Bijlal goes to an electronic shop. मिस्टर बिजलाल के वो कहाँ पे गए? किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए. किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हैं. Goes means वो किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाते हैं and buy some items और कुछ सामान खरीदते हैं. He receives the following bill after the purchase. पूरा सामान खरीद लिया, सारा सामान पैक करा के गाड़ी में अपने रखा तो एक बिल उनको मिला.
जब पैसे देते हैं तो उसके बदले में बिल मिलता है ना कि कौन सा सामान कितने का है, बिल समझते हैं ना? Yes, sir. इनवाइस भी बोलते हैं। Yes, sir. बिल इज ऑल्सो नोन एज ए इनवाइस। इनवाइस मीन्स एक तरीके से बिल है, जिसमें इनवाइस में या बिल में there is a detail of all the items whatever you have purchased and the quantity of the item, कि आपने कौन सा सामान कितना खरीदा है और कितना पीसेस खरीदा है, कितने आइटम्स खरीदे हैं, कौन कौन सी चीजें खरीदे हैं और टोटल आपको कितना पैसा देना है, उसमें सारी चीजें लिखी रहती है। ऑलराइट? Yes, sir. Muskan, you have put your video on stop. Start your video, everyone please. Don't stop anybody. अपना वीडियो कोई बंद मत करे। तो ये बिल में क्या है? अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रो चेन ये क्या है? मतलब Yes, sir. इलेक्ट्रो चेन क्या हो सकता है? आप लोग भी अच्छा कितने, हाउ मेनी हैव सीन द बिल? इस बुक के पहले आप लोगों ने अपने घरों में कोई बिल या इनवाइस देखा है जब कोई सामान खरीद के आया हो? हाउ मेनी हैव सीन? शो मी योर हैंड। ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोगों ने बिल देखा है या नहीं देखा है? कोई बात नहीं, हो सकता है बिल ना भी दिखा हो, तो कितने लोगों ने देखा है? ओके, चलिए ठीक है, डाउन योर हैंड। तो बिल के ऊपर, इनवाइस के ऊपर क्या होता है? या इलेक्ट्रो चेन क्या हो सकता है? किसी सामान का नाम है? क्या है? कौन बता सकता है? जिस शॉप से नहीं है उस शॉप का नेम है। Yes, this is the name of the shop where Mr. Bijlal purchased the electronic item. And tell me ma'am, कौन सी डेट को खरीदा? कौन सी डेट को खरीदा? जरा बिल देख के बताइए। February 2017। 2 फरवरी 2017 बिल की डेट है। जब ये बिल काटा गया, जब ये बिल बना, तब कौन सी तारीख थी? 2 फरवरी 2017, 2 फरवरी 2007, मतलब 2017, 2 फरवरी इन 2017। जिसके नाम से बिल कटा है उसका नाम लिख सकते हैं, उसका एड्रेस भी लिखा है, नाम और एड्रेस। ओके, अब कौन कौन से आइटम्स खरीदे, कितने आइटम्स खरीदे, जरा ये बताइए। टोटल हाउ मेनी आइटम्स वर परचेज? 4. Air conditioner। Okay, Anshit, good. Down your hands. What is the first item? Air conditioner। Air conditioner। The first item is air conditioner. I would be asking the name. The person has to tell. जिससे मैं पूछूंगा, एक बार उसको बताना है। Rest of the students can send their answer in the chat box, so that I can know that whether you all are able to understand this bill or not. इस इनवाइस को आप समझ पा रहे हैं या नहीं, ये भी पता चले। What is the price of air conditioner? You have to send in my chat box. You all need to send the price of the air conditioner. Air conditioner की कॉस्ट क्या है? What is the cost of air conditioner? You all need to send me the cost of air conditioner in my chat box. मुस्कान, दीपक, यशवर्धन की प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ओके, आस्था, साक्षी, गौरव, उत्कर्ष पांडे, आदर्श सिंह, अनुष्का यादव, आदित्य सिंह, अंकित, Vanya Chaudhary, these students already have sent the answer and both the answers, सभी के आंसर सही है, सभी के आंसर सही भी हैं। और बाकी बच्चे अंकित हो गए, अंश गुप्ता हो गए, अभिनय पांडे हो गए, आप लोगों को भी तो ट्राई करना चाहिए बेटा। कैसे मैसेज किया जाता है? दीपक सिंह हो गए, अतुल यादव हो गए, इन सब चीजों में तेज रहना चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव बनिए।
से आवाज आ रही है बेटा, फैन आपका चल रहा है क्या? यहाँ पे कूलर वगैरह चल रहा हो तो प्लीज कूलर बंद कर दीजिए। ठीक है, सिमरन भारती मान्य also attend. Now come to the board. Come on the screen please. आपके बुक में दिया है द कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इज क्या है? अभिनय पांडे जरा बताइए देख के। अभिनय पांडे अपनी बुक देख के बताइए एयर कंडीशनर की प्राइस क्या दिया है बिल पे। पेज नंबर 35 ओपन है या नहीं? क्या हुआ बेटा? अभिनय अभिनय की आवाज नहीं आ रही प्रॉपरली। यस सर। अंश गुप्ता आप बताइए। अंश गुप्ता आपने पेज ओपन किया बेटा 35 पेज नंबर? यस सर। मुझे जरा बताइए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनर? अंश गुप्ता एयर कंडीशनर की प्राइस क्या है? आप देख के नहीं बता पा रहे हैं। राजपाल जरा आप बताइए अपना माइक ऑन करके। सर 3,02,568। रॉन्ग है, आपको अभी नंबर पढ़ना नहीं आता है। जरा बताइए 3 कौन से प्लेस पे है? 1 से 100 जरा काउंट करिए कौन से प्लेस पे है। आज जब एक महीना पढ़ेंगे तो यही होगा। सर 32,568। 32,568 rupees is the cost of the air conditioner. And what is the second item? That is a refrigerator. रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट क्या है जरा बताइए। कौन बताएगा? रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट ठीक है, जिन्होंने लिख के भेजा था वो नहीं, कोई और कौन बताएगा? संजना पासवान बताइए। संजना पासवान व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ राजपाल आपके यहाँ से आवाज आ रही है बेटा, अपना माइक बंद रखिए जब आपको बोलना हो। 24,164 that is correct. The same way also the cost of the television and water purifier is there ना? टेलीविजन और वाटर प्यूरिफायर की भी प्राइस और कॉस्ट दिया गया है कि नहीं? यस सर। दिया गया है। बिल आपके पास दिया गया है कि किस आइटम की कितनी कॉस्ट है तो आप बिल देख के बता सकते हैं ना? यस सर। अगर मैं ऐसा पूछूं एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर दोनों मिला के कितने का हुआ, कितनी कॉस्ट हुई, तो क्या दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? कैसे पता चलेगा? ऐड करेंगे। एडिशन करेंगे। इस शो का देखिए आपका पहला क्वेश्चन भी वही है। आपका जो पहला क्वेश्चन है ए, चली गई है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द एयर कंडीशनर एंड द रेफ्रिजरेटर? जिसे करने में ये शो कामयाब भी बहुत रहा है। वहीं अगर बात करें इस शो शिवांगी की त्रिपाठी आपके यहाँ टीवी चल रही है और मेरे यहाँ पे आवाज आ रही है। दिखने में बहुत अपना जिसके यहाँ पे टीवी चल रही है वो प्लीज अपना माइक बंद कर दें या तो टीवी बंद करवा दें। The first question is what is the total cost of the air conditioner and the refrigerator? तो एयर कंडीशनर और टोटल रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट क्या है? एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर को दोनों को ऐड कर देंगे, यू वुड बी गेटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर ना? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. You all need to write your answer in the book only, okay? The second question is what is the difference? What is the difference means क्या हुआ? Who can tell? What is the difference means क्या हुआ? What? अंतर क्या है? डिफरेंस मीन्स क्या होता है? सर अंतर। What is the difference between the cost of air conditioner and the water purifier? जो एयर कंडीशनर है और वाटर प्यूरिफायर है दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? मुझे ये कौन बता सकता है कि डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? Who can tell that? How will you find the difference? How many can tell? Show me your hand.
दो नंबरों के बीच में डिफरेंस कैसे सर निकाला जाएगा? वो आज कट की आ रही है। किसी के यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज अगर ऐसे बच्चों को मुझे बाहर कर देना पड़ा आज के दिन तो अच्छा नहीं लगेगा। डिफरेंस निकालना कितने लोग को आता है? बाकी लोगों को नहीं आता जिन्होंने हैंड नहीं रेज किया है। क्यों? अंकित, आदर्श, मुस्कान, संजना, आप लोग को नहीं आता है कि आपको हैंड रेज करने के लिए स्पेशली बोलना पड़ेगा। हैंड रेज करेंगे कैमरे के सामने होना चाहिए ना, इसके बाहर में करेंगे कैमरे के बाहर। यशवर्धन सिंह बेटा, आप फोन लेकर के आप अभी आज आधा घंटा से यही कर रहे हो, एक जगह फोन रख करके आप क्लास में कर रहे हो, इसी वजह से आपकी क्लास नहीं चल पा रही है। आप एक जगह फोन रख करके यूज करें, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फोन करिएगा, मैं आकर के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। यशवर्धन, चलिए ठीक है। कौन बताएगा? उत्कर्ष पांडे, आप बताइए क्या कैसे निकालते हैं? तो सब्ट्रैक्ट करके। अरे मतलब सब्ट्रैक्ट किसको किसमें करेंगे बेटा? सर एयर कंडीशनर और वाटर ये प्यूरिफायर। हूँ। द सिंपल क्वेश्चन इज, लेट्स से कि आप क्वेश्चन बुक भूल जाइए, बुक से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग दैट कि दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे? किसको कितने में से माइनस करेंगे दोनों संख्याओं में? सर बिगेस्ट नंबर को सर स्मॉलेस्ट नंबर से माइनस करेंगे, सर सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस हो जाएगा? नो सर, बिगेस्ट नंबर को सर स्मॉलेस्ट नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिगेस्ट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर माइनस कर देंगे। चलिए ठीक है, गुड। ऑन योर हैंड। जो आपका बिगेस्ट नंबर, देखिए आपका एयर कंडीशनर और वाटर प्यूरिफायर की कॉस्ट आप देखेंगे। डाउन योर हैंड एवरीबॉडी। तो दोनों की कॉस्ट में जिसकी कॉस्ट ज्यादा होगी उस ज्यादा वाली कॉस्ट में से कम कॉस्ट वाला जब आप माइनस कर देंगे, देन यू वुड बी गेटिंग कि वो दूसरे जो आइटम की कितनी कॉस्ट ज्यादा है। जितना ज्यादा होगा वही तो डिफरेंस होगा। यस सर। कम टू द क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी, एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 1000। एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 1000। आपको इसके नियरेस्ट 1000 तक एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट मीन्स राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करना तो सिखाया गया आप सभी को। राउंड ऑफ। यस सर। यस सर। नियरेस्ट 1000, इसको नियरेस्ट 1000 तक एस्टिमेट करना है। कौन से अमाउंट को? किस अमाउंट को, किस नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 1000? द अमाउंट पेड बाई द ब्रिजलाल फॉर द एलईडी टेलीविजन एंड द वाटर प्यूरिफायर। फॉर द अमाउंट, कौन से अमाउंट को? टेलीविजन या वाटर प्यूरिफायर, कौन से? या दोनों के? किसके? सर दोनों के। सर दोनों के। वाटर प्यूरिफायर दोनों के लिए दोनों की दिया। तो टेलीविजन का कितना दिया आपको पता है कि नहीं? बुक से देख लेंगे बिल में से। यस सर। वाटर प्यूरिफायर की कितना दिया है बिल में, बिल से पता चल जाएगा ना। यस सर। दोनों के लिए कितनी कॉस्ट दिया गया? दोनों के लिए टोटल कितनी कॉस्ट निकाल लेंगे बेटा? यस सर। फिर जो भी आंसर आएगा उसके नियरेस्ट 1000 पे आप राउंड ऑफ यानी एस्टिमेट कर पाएंगे। यस सर। कोशिश करिएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो अगली लाइव क्लास में मैं आपको समझा दूंगा सारे क्वेश्चन। ठीक है? नाउ कम टू द क्वेश्चन। यस सर। कम टू द क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी, एस्टिमेट टू द एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 100। इसको नियरेस्ट 100 से एस्टिमेट करना है, बट किसको? आगे देखते हैं। एस्टिमेट टू द नियरेस्ट 100 द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द आइटम। टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑल द आइटम मीन्स क्या हुआ? क्या हुआ? टोटल आइटम। कॉस्ट ऑफ द सारे आइटम को मेंशन है बेटा। I am asking that what is the total cost of the all item? Is it mentioned on the bill or not? यस सर। So यस सर। what is the total cost of all the item?
Sir, 1,06,706. टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द आइटम, सारे सामान का मिला करके टोटल कॉस्ट कितना है? 1,16,706. इट इज मेंशन ऑन द बिल. बिल में लिखना है, आपको जोड़ने की जरूरत भी नहीं है, एक काम कम है. तो जस्ट ओनली यू नीड टू एस्टिमेट द नंबर टू इट which place? Nearest 100. Nearest 100. Nearest 100. Very good. Now come to the next question. Come to the next phase, that is a challenger. Challenger आपको पता है चैलेंज करता है. देखते कौन कौन इस चैलेंज को Yes, sir. फेस कर पाता है. The question is, the population of a place is 56,254. The population of a place is 56,254. More than the difference between the largest and the smallest 6-digit number. बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन. इसको क्वेश्चन को मुझे थोड़ा सा इजी करके आपको समझाना पड़ेगा. इस क्वेश्चन को लिखता हूँ, फिर आप लोग को बताते हैं. The population of a place is 100. मैं 100 लिख रहा हूँ. अभी ये वैल्यू आप बढ़ा देना, बाद में समझाता हूँ. अभी ये समझाने के लिए मैंने छोटा कर दिया. जरा ये बताइए, मैंने यहाँ पे लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इज 100 मोर देन 50. तो इसका मतलब कितना पॉपुलेशन है, कौन बता सकता है? अगर मैं इस स्टेटमेंट से टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हाउ मेनी कैन टेल, अगर मैंने ऐसे लिखा, अगर मैं डायरेक्टली कोई नंबर ऑफ पॉपुलेशन मैं बता सकता हूँ, या तो मैं आपको कोई रिडल, कोई एक तरीके से पहेली बुझा सकता हूँ ना, या कोई स्टेटमेंट दे सकता हूँ जिससे आप कैलकुलेट कर सको. आई हैव गिवन ए स्टेटमेंट, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस, एक किसी प्लेस की पॉपुलेशन जो है इट इज 100 मोर देन 50. मतलब कितना पॉपुलेशन है, हु कैन टेल? जस्ट ओके बेटा, बताइए बताइए सभी लोग बताइए, सभी अपना माइक ऑन करके बताइए. माइक ऑन करके बताइए बेटा. आदित्य 150. Sir, 150. yes 150. देखो पॉपुलेशन ऑफ प्लेस इज, ध्यान से देखिए, अब आप नहीं बोलना है, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी इसी में फंस जाएंगे कि आपका क्वेश्चन बहुत टफ है. आपको उसको इजी बनाना है, तो इजी बनाने के लिए समझिए. द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इज 100 नहीं है, 100 मोर देन काफी ज्यादा 50 है. क्या है? देवदास जोधा अकबर किया था. शिवांगी त्रिपाठी, बेटा आप यहाँ पे इतना डिस्टर्बेंस होता है, मुझे आपको क्लास से ही बात कर देना पड़ेगा, मुझे लग रहा है आज. आप अपना माइक तुरंत बंद कर लिया अगर ये बताने के बाद. अपने घर में आप लोगों को शांत करने के लिए बोलिए, इस तरह नहीं होता. द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इज 100 नहीं है, 100 मोर देन 50 है. क्या है? 100 है, 100 more than 50. 100 मोर देन 50 है, 100 नहीं है. लेकिन आपकी बुक में जो दिया है, 100 मोर देन 50 नहीं, ये 50 के जगह पे जान पे क्या लिखा है? 100 मोर देन द 50 के जगह पे क्या लिखा है? मैं 50 लिख दे रहा हूँ, इस 50 के जगह पे लिखा है मोर देन. ये 50 के जगह पे क्या लिखा है? अभी यहाँ पे मैं ये लिख दूं 100 मोर देन 100 मोर, अभी मान लीजिए 50 के जगह पे मैं ये लिख दूं 100 मोर देन द लार्जेस्ट 2-digit नंबर. तो व्हाट इज, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इज 100 मोर देन द लार्जेस्ट 2-digit नंबर. देन व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ दिस सिटी? इसका मतलब क्या हुआ? 109. 199. Good. The population of a place 100 नहीं है, 100 more than
The largest two digit number. So largest two digit number is 99. लेकिन 100 more than 99 बोले या 100 more than largest two digit number बोले, बात एक ही है ना? चलिए आप लोग पकड़ रहे हैं। Yes, sir. अब आपकी बुक पे आते हैं, ध्यान से देखिए, कोई बोलिएगा नहीं। 50 के बजाय more than the बताइए, मैंने यहाँ पे कुछ दूसरा लिख दिया। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इज 100 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन 20 एंड 10। व्हाट इज द पॉपुलेशन? आप समझाइए। 100 मोर देन द डिफरेंस, 100 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 20। व्हाट इज द पॉपुलेशन? 110. 110. 110. 110। ठीक है बेटा, ठीक है। जब मैं समझाने लगूं उसका मतलब मैंने सभी का आंसर सुन लिया। जब मैं समझाने लगूं तब मत बोला करिए प्लीज। 100 नहीं, 100 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 20। द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 20 इज 10। तो 100 मोर देन 10 बोले या डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 20 बोले? आपकी बुक में ये भी नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है। देखते क्या लिखा है। डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 20 नहीं लिखा है। बिटवीन द स्मॉलेस्ट, बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। सभी को दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए क्या लिखा था। 100 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 20 था। 10 एंड 20 के जहां पे क्या Yes, गया? 10 एंड 20 के जहां पे क्या आ गया? मोर देन द डिफरेंस बिटवीन 10 के जहां पे आ गया द लार्जेस्ट एंड 20 के जहां पे क्या आ गया? स्मॉलेस्ट। द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। The population of a place is 100 more than the difference between the largest and the smallest 6 digit number. What is the population? क्या हो सकता है इसका? मुझे आंसर नहीं बताना, मुझे जरा समझाइए इसका मतलब। कितने लोग समझ गए? How many have understand the meaning of this question? और जो समझ गए हैं वो सॉल्व करके मुझे जरा आंसर चैट बॉक्स में भेजिए। तो कितने लोग समझ गए हैं? अच्छा, कितने लोग नहीं समझ पाए हैं वो हैंड रेज करें, एक बार मैं फिर से समझा दूं। आस्था समझ गई बेटा या फिर से समझाना है? सर फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा दीजिए। ओके, यहाँ से समझिए लेकिन बोलिए अगर नहीं यस नो, बाद में मैं बोलना जब मैं पूछूंगा तब। पहले समझना केवल। मैंने पूछा था ना द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इज 100। नहीं, 100 नहीं है। द पॉपुलेशन इज प्लेस, पॉपुलेशन ऑफ प्लेसेस 100 मोर देन। 100 मोर देन किससे? अब 100 मोर है लेकिन किससे? 100 मोर देन। अब 100 मोर देन 20 होता तो 120 होता। 100 मोर देन लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता तो 199 आपने बताया। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट नंबर नहीं। 100 मोर देन किससे? मोर देन द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 20 था, तब आपने 10 से ज्यादा बताया। किससे 100 मोर देन है? 100 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। किससे 100 मोर है? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर से। व्हाट इज द पॉपुलेशन? कितने लोग समझ गए? हाउ मेनी हैव अंडरस्टैंड? हाउ मेनी हैव अंडरस्टूड बेटा? Nobody? Okay, many of the students have understood. Okay, then tell me the answer beta, correct answer. What is the largest, tell me the number of population of this question. Tell me the number of population of this question. The number of population is 100 more than difference between the largest and the smallest
6 डिजिट नंबर। इसका आंसर देखते हैं कितने लोग भेज पाते हैं। आप विद इन अ मिनट यू ऑल नीड टू सेंड द योर आंसर। एक बार रफ कॉपी पे आप पहले निकाल लीजिए कि 100 मोर देन किससे ज्यादा 100 है, किससे 100 मोर है, किससे 100 मोर है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट से 100 मोर है। तो डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालिए, उससे 100 मोर देन आपका पॉपुलेशन है। So I need the answer for that. Let us see that how many are going to send. I'm waiting for the answer. I've received answer from Asta Maurya, that is wrong. बेटा लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, अच्छा सॉरी अभी देखते हैं, डिफरेंस पूछा गया। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, चलिए देखते हैं। फिलहाल आपका योर आंसर इज रॉन्ग बेटा। Let us see that how many else are going to send. बेटा कई लोगों ने भेजा है, सबके आंसर रॉन्ग हैं। कई लोगों ने भेजा है, सभी के आंसर रॉन्ग है। चलिए ठीक है, नो इशू। जिन्होंने भेजा कोशिश किया वही बहुत है। शिवांगी, अनुष्का, साक्षी, शिवान्या, शिवांगी कनौजिया, अंचित, उत्कर्ष पांडे, कई लोगों ने भेजा है। अभी और भी कुछ लोग भेज रहे हैं तो देख लेते हैं कौन कौन भेज रहे हैं। I have received the answer from Yashwardhan, that is also incorrect. I have received the correct answer from Aditya Singh. Aditya Singh is correct. I have received correct answer from Aditya Singh. Okay, no issue. Leave that. Come to the screen, everybody. Come to the screen, everybody. उत्कर्ष पांडे, मेरा आंसर करेक्ट है। नहीं बेटा रॉन्ग है। सभी लोग ध्यान से देखिए क्या बोला गया है। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इज 100 मोर देन। 100 मोर देन किससे, 100 मोर देन किससे, देन के बाद देखिए इससे, जो भी इसका आंसर होगा इससे, देन के बाद जो भी है उसी से तो 100 मोर देन होगा, है कि नहीं? यस सर। जरा यस सर। जो भी इसका आंसर आएगा उसमें 100 हम ऐड कर देंगे, वही आंसर होगा। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। व्हाट इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर? 1, 2, 9,99,990. 5 and 6. Largest 6 digit number is this ना? यस सर। तो डिफरेंस निकालने के लिए ज्यादा में से कम को माइनस करना पड़ता है, तो लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट माइनस कर देना। दोनों 6 डिजिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6 6 डिजिट नंबर हो गया कि नहीं? यस सर। दीजिए इसको। क्या हुआ? 9 माइनस 0 को 9। This is what? This is the difference between the largest and the smallest 6 digit number. यही तो है। यस सर। ये क्या आंसर आया? This is the difference. This is the difference between the largest and the smallest number. लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के बीच में डिफरेंस है ये, यही तो है। क्या पूछा गया था? जो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है उससे मोर देन पॉपुलेशन कितनी है?
जो भी इसका आंसर है उसे 100 मोर है, तो इसमें 100 प्लस कर दीजिए 100. Yes, sir. Plus Yes, sir. 9 plus 0 equal to 9, 9 plus 1 equal to 10, 9 plus 1 carry गया 10, Yes, sir. 10, 9. Yes, sir. That means कि 9,99,000 is the correct answer. Okay? Yes, sir. Yes, sir. बट बेटा आपका इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि नहीं आपकी बुक में? लेकिन बेटा 100 नहीं, आपके ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो दिया है दिस इज नॉट 100 मोर देन. आपकी क्वेश्चन में कितना मोर देन दिया है? 56,250. 56,250. आपके जो क्वेश्चन में है वो 100 मोर देन नहीं है. आपके बुक में जो वो 56,000 मोर 254 मोर. तो दैट मीन्स कि जो भी इसका आंसर आएगा उसमें 56,254 मोर पॉपुलेशन है. उसमें 100 के बजाय क्या ऐड करेंगे? 56,254 और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ऐड करके देख भी लेते हैं. 56,254 ऐड करते हैं इसको. अगर 9 plus 4 equal to 13, 9 plus 5 equal to 14 plus 1 15, 9 plus 2 11, 11 12, 9 plus equal to 15, 15 plus 1 equal to 16, 9 plus 14 1 carry आपका 15, 8 plus 1 ये आपका दिस इज द आंसर 99,56,253. है कोई आंसर कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आपको समझ में आया ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था या नहीं? Yes, sir. इस तरीके से कभी भी Yes, sir. इस तरीके से कभी भी आए तो ऐसे आपको डिफरेंस करना है. मोर देन या लेस देन के बाद जो भी आपका हो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. बच्चे घूमते रह जाते हैं. ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा. बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज मेंटल मैथ. ध्यान दीजिएगा. मेंटल मैथ का मतलब आपका मेंटल मैथ यानी आप ब्रेन में ही आप सारी कैलकुलेशन करिए, माइंड में ही आप कैलकुलेशन करिए. अगर आपको 10,000 माइनस आपके बुक में 100 है, मैं 200 लिख दे रहा हूँ. 10,000 माइनस 200 है तो इसको नहीं ऊपर नीचे आप करें वर्टिकल में, आप माइंड में ही करिए. 1 माइनस 1, 10 माइनस 10, 100 माइनस 100. जो कैरी आए या बारो आए उसको मन में ध्यान रखना है. Okay? Then you all need to complete the worksheet first and second दोनों. चैलेंजर आपका सॉल्व हो ही गया. मेंटल मैथ का भी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ ये चारों कंप्लीट करिएगा. ओके? Yes, sir. Yes, sir. आपका सेशन विदिन 20 मिनट्स आपका क्लोज होने वाला. आप लोग दोबारा ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आप सबसे.